Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the various and the basic concepts of the macroeconomics, right? Important for the from the exam point of view. So let's start now. What is factor income and transfer income, right? Factor income क्या होती है and what is transfer income? Factor income, the income received by factors of production for rendering factor services in the production process is known as factor income, right? जो भी factors of production हमारे production process में use हो रही है उनसे जो हमें income receive होती है that is known as factor income. Like factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, right? Enterprise क्या देता है हमें? Gives us profit. Here, factors of production are the primary inputs like land, labor, capital and entrepreneur required for the production of goods and services. So, इनसे जो हमें income मिलती है that is in the form of rent, wages, interest and profit. This is determined as a factor income, right? For example, wages, rent, profit and interest while determining the national income of an economy. Factor income received by its normal resident is also included, right? कहते जब हम अपनी नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं उस टाइम पे जो फैक्टर इनकम रिसीव की जाती है बाय इट्स नॉर्मल रेजिडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड, वो हमारी नेशनल इनकम में क्या होती है? इंक्लूड होती है, राइट? फैक्टर इनकम लाइक लैंड गिव्स अस रेंट, लेबर गिव्स अस वेजेस, कैपिटल गिव्स अस इंटरेस्ट, राइट? जो कैपिटल एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करता है उस पे उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंटरप्राइज गिव्स अस प्रॉफिट और एंटरप्रेन्योर हमें क्या देता है? प्रॉफिट्स देता है, राइट? सो दिस इज फैक्टर इनकम. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? The income received by an individual without rendering any productive services in return is known as transfer income. कहते वो इनकम जो एक इंडिविजुअल को रिसीव हो रही है बट उसके फेवर में उसको कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस देने की जरूरत नहीं है, राइट? कि फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट कुछ एड्स जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, लाइक कोई हैंडीकैप्ड पर्सन को प्रोवाइड करती है, जो भी एड होती है जिसका की रिटर्न इनकम जो है रिसीव हो रही है, कि जो रेसिपिएंट है जिसको रिसीव हो रही है उसको क्या हो रही है? इनकम रिसीव हो रही है बट विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, कि उसके बदले में उस पर्सन को क्या है कि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना पड़ रहा. ऑन द अदर साइड, transfer income is a unilateral concept, right? It is only one sided concept and is not included in national income. और ये हमारी national income में क्या है? include नहीं की जाती as it doesn't involve the production of goods and services, right? क्योंकि ये हमारे production of goods and services में involvement ही नहीं होती इसकी. For example, old age pension, pocket money gifts, scholarship etc. तो ये सब क्या हो जाती है? हमारी transfer income. Transfer income can be received either from abroad or within the domestic territory of a country. Transfer income को कहाँ से receive की जा सकती है? या तो either abroad से like foreign country or within the domestic territory of a country. Clear? Like food stamps, medical aid, free health insurance. So these are the examples of transfer in payment incomes. Clear? Next. Transfer can be of two types. First one is capital transfer and second one is current transfer. So, what is the difference between current transfer and capital transfer? First one is meaning. Meaning of current transfer is a transfer that is made out of income is known as current transfer. जो भी ट्रांसफर हमारी इनकम में से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? करंट ट्रांसफर, राइट? कि जितनी इनकम हमें रिसीव हुई उसमें से अगर हम अपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? करंट ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांसफर, a transfer that is made out of the wealth of the payer is known as capital transfer. वेल्थ को क्या इनकम क्या हो जाती है? कि जो हम कोई काम कर रहे हैं उससे हमें जो इनकम रिसीव हो रही है वो होती है उसकी इनकम. बट वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होती है लाइक प्रॉपर्टी, राइट? उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है तो ये उसकी क्या होगी? वेल्थ, राइट? सो वेल्थ में से जो ट्रांसफर किया जाता है दैट इज नोन एज कैपिटल ट्रांसफर. क्लियर? नेचर,
जनरली रेगुलर इन नेचर, कि ये जो करंट ट्रांसफर की नेचर होती है ये क्या होती है, रेगुलर होती है। लाइक क्रोनोलॉजिकली, फॉर एग्जांपल मंथ बाय मंथ, आफ्टर क्वार्टर, 6 मंथ्स, राइट, ऐसे जो है जनरली क्या होती है, रेगुलर होती है। कैपिटल ट्रांसफर इज जनरली इरेगुलर इन नेचर, लाइक कभी साल बाद कर दी पेमेंट, कभी 2 साल बाद हो रही है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, सो दिस इज इरेगुलर। meant for, these are meant for consumption purposes. कंजम्पशन पर्पसेज मीन्स कि जिस फॉर एग्जांपल कि हमने कोई ट्रांसफर करी तो उसकी उससे क्या हो रहा है कि किसी की कंजम्पशन पर्पसेज फुलफिल हो रही है, राइट। ऑन द अदर हैंड दीज आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कि जिसको कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, कि कोई हमने ट्रांसफर करी है अपनी वेल्थ में से, किस पर्पस के लिए, कि हम उस ट्रांसफर की क्या करेंगे, आगे जाके किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल करंट ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट्स, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो ये क्या हो गए हमारे करंट ट्रांसफर्स। ऑन द अदर हैंड examples of capital transfers, war damages, investment grant, capital gains tax, right? So these are the examples of capital transfer. Clear? Next, what is the difference between factor income and transfer income? Meaning, the factor income is the income received by factors of production for rendering factor services in the production process. जो भी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया है उनसे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर income is the income received by an individual without rendering any productive services in return, कि कोई काम किए बिना जो कि कोई इनकम हमें रिसीव हो रही है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम क्या है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कि जब हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। सो ये क्या हो गया, अर्निंग कॉन्सेप्ट हो गया, कि किसी चीज को अर्न करने के लिए हम किसी चीज को इनकर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीट कंसेप्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर इनकम कि कोई पर्सन रिसीव कर रहा है। नेचर, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वो कहाँ पे इंक्लूड होती है, इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। On the other hand, transfer income is neither included in domestic income nor national income of an economy. Clear? कि जो हमारी फैक्टर इनकम होती है ये हमारी डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल इनकम बोथ इंक्लूडेड। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर इनकम इज नीदर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नॉर नेशनल इनकम। क्लियर? रेसिपिएंट, कि कौन कौन से रेसिपिएंट होते हैं। फैक्टर इनकम इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट, कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको ये इनकम रिसीव होती है। On the other hand, transfer income is received by the households and the government. जो ट्रांसफर इनकम है वो किसको रिसीव की जाती है, किसके द्वारा रिसीव की जाती है, हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स, wages, rent, interest and profit are the factor income. On the other hand, transfer income means स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल गए, गिफ्ट्स मिल गए, ओल्ड एज पेंशन मिल रही हैं, पोस्ट एज स्टैम्प्स मिल गई। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स दैट सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, कि जिनको कि ये कंज्यूमर कंज्यूम करता है फॉर इट्स टू सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ हिमसेल्फ, कि अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स कंज्यूम की जाती हैं बाय द कंज्यूमर, राइट। फॉर एग्जाम्पल शर्ट, पेन, ब्रेड, बटर, समथिंग लाइक, जो भी उसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी चीज का वो कंजम्पशन कर रहा है दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, नेमली ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, राइट। कहते हैं कंजम्पशन गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड वन आर सर्विसेज, third one is semi durable goods and fourth one is non durable goods. Now first one is durable goods. Durable goods क्या होती है,
The goods that consumers can use again and again over a considerable time period are known as durable goods, right? Durable goods are those जो कि consumers can use again and again for a considerable time period, उनको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, राइट, माइक्रोवेव. सो दीज आर ड्यूरेबल गुड्स कि जिनको कि दोबारा दोबारा यूज किया जा सकता है बहुत लंबे समय तक, राइट. सो दीज आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स. नेक्स्ट वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? The goods that consumers can use for a limited time period are known as semi-durable goods, जिनको कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए यूज किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है. That are semi-durable goods like क्लोथ्स, शूज, राइट. कि अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो वो भी कुछ टाइम के बाद हमारे ओल्ड हो जाते हैं, सो हमें न्यू क्लोथ्स क्या करने पड़ती है? परचेज करने पड़ते हैं. सो ये क्या है? थोड़े टाइम के लिए हम लोग एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो इनको यूज किया जा सकता है, दैट इज नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. क्लियर? नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स. The goods that are used by the consumers in one consumption only are known as non-durable goods. कि जिनको कि जैसे ही हम परचेज करेंगे वैसे ही उनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बटर, ब्रेड, chocolate, ice cream, etc. One cannot use these goods for more than once. कि हम एक बार इनको यूज करके ऐसे नहीं है कि दोबारा यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने एक बार इनको कम्प्लीटली फिनिश कर दिया तो हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, सर्विसेज. The non-material goods which satisfy human wants directly are known as services. जो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं और इनविजिबल गुड्स होती है जिनको कि हम लोग देख नहीं सकते, राइट. Services are goods that are intangible in nature and cannot be touched or seen. कि जो कि intangible होती हैं नेचर में. intangible means कि जिनको कि हम लोग टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं और ना ही इनको स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स, टीचर्स, एक्सेट्रा, राइट. सो ये क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही सर्विसेज को क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है टू दी डायरेक्ट कंज्यूमर, राइट. हम ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम डॉक्टर के पास क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को नहीं भेज सकते. जब हम प्रॉब्लम हमें है तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास. सो जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा बाय टू द सर्विस प्रोवाइडर, राइट. सो दीज आर सर्विस. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर कैपिटल गुड्स? Capital goods are physical assets that an organization uses in the process of production to manufacture goods and services that consumers will use later, right. Capital goods कहते हैं वो physical assets होती हैं जो कि एक organization uses in the process of production, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करती है टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज जिनको कि कंज्यूमर बाद में कंज्यूम करता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स कहते हैं वो फिजिकल एसेट्स होती हैं कि जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती हैं. इन शॉर्ट, कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो नोन एज टेंजिबल गुड्स. टेंजिबल गुड्स मीन्स कि जिनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं. एज दे आर फिजिकल इन नेचर, इट इन्वॉल्व्स लाइक बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, टूल्स, एटसेट्रा, राइट. कैपिटल गुड्स आर नॉट फिनिश्ड गुड्स. कहते कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? फिनिश्ड गुड्स नहीं होती. रेदर दे आर यूज टू मेक फिनिश्ड गुड्स, जिनको कि यूज किया जाता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट. It means that the capital goods are used by the firms for productive purposes in the future and have an expected lifetime of several years, right. कहते capital goods को firms क्या करती हैं? यूज करती हैं अपने प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए एंड उनकी क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होती है जो कि आने वाले सालों में कस्टमर को क्या मिलती है. However, these goods do not lose their identity during the production process and need replacement or repair from time to time as they depreciate over an expected period of time, right.
कहते जो ये कैपिटल गुड्स होती हैं ये क्या होती हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती, रेदर इनको क्या होता है, ये टाइम टू टाइम इनको क्या चाहिए होती है, रिपेयर चाहिए होती है, बिकॉज जैसे जैसे हम इनको यूज करते रहते हैं वैसे वैसे क्या होती रहती है, ये मशीन्स क्या होती हैं, डेप्रिशिएट होती रहती हैं. Besides, the capital goods have derived demand. It means that the demand for capital goods derives from the demand of other goods which are produced by these capital goods. Right? Derived demand क्या होती है? Derived demand होती है कि किसी प्रोडक्ट की हमें नीड है, तो उस प्रोडक्ट की नीड को पूरा करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस प्रोडक्ट की हमें जरूरत पड़ रही है, that is derived demand. Right? For example, फॉर एग्जाम्पल लाइक कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि मूवी टिकट्स की जो डिमांड इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से जो मूवी थिएटर्स होते हैं उनके जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, राइट, उनकी जो मूवी टिकट्स के शोज हैं, सो उसकी क्या है, डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है, राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन टूडेज इरा हमें क्या पता है, एवरीथिंग इज डूइंग ऑन कंप्यूटर्स, राइट. कंप्यूटर्स की क्या है, नीड आजकल बहुत ज्यादा हो गई है. सो कंप्यूटर चिप्स की नीड जो है आजकल ज्यादा हो गई है. सो इसकी वजह से, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड. क्लियर? नेक्स्ट what are producer goods? Producer goods are goods that are used by the producers. However, all producer goods are not capital goods and can be of two types. First one is single use producer goods and capital goods. Single use producer goods कौन सी होती हैं? That include raw materials like wood, coal, etc. and they cannot be used repeatedly in the production process. राइट. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स वो होती हैं जिनको कि एक बार ही यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल लकड़ अगर हमने एक बार यूज कर ली, सो ये नहीं है कि हम उसी लकड़ को क्या है दोबारा यूज कर सकते हैं, हमें दोबारा कहीं और से क्या है वुड लेके आनी पड़ेगी, राइट. सो ये क्या हो जाती है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. ऑन द अदर हैंड सेकेंड वन आर कैपिटल गुड्स, जिनमें फिक्स्ड दैट इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट. जिनके में कि क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिनको कि हम क्या रिपीटेडली यूज कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. Therefore, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Therefore, जो भी capital goods होती हैं वो क्या होती हैं, producer goods होती हैं, because ये capital goods क्या करती है, finished goods को produce करने के लिए helpful होती हैं. But all producer goods are not capital goods, right? Next. Difference between consumption goods versus capital goods, right? Meaning, consumption goods are the goods that satisfy the wants and needs of the consumer directly, right? जिनको कि consumer क्या है, अपनी needs and wants को satisfy करने के लिए directly consume करता है, that are known as consumption goods. On the other hand, capital goods क्या होती हैं? Capital goods are those physical assets that an organization uses in the process of production to manufacture products and services that consumers will use later, right? कि अपने फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, दैट आर नोन एज कैपिटल गुड्स. क्लियर? सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली क्या करती हैं, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड दस हैव अ डायरेक्ट डिमांड इन द मार्केट, कि जिनकी क्या होती है, मार्केट में डायरेक्ट डिमांड होती है, बिकॉज ये क्या करती है, डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं. ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स क्या है, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, बिकॉज ये इनकी क्या होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है, राइट. एक्सपेक्टेड लाइफ. Most consumption consumer goods except durable goods have limited expected life, right? Durable goods को छोड़ के, right, like washing machine, refrigerator, कि जो हमारी ज़्यादातर consumption goods होती हैं उनकी क्या है, एक limited expected life होती है. On the other hand, generally capital goods have an expected life of more than 1 year. जो capital goods होती हैं उनकी क्या है, expected life होती है of more than 1 year. Production capacity.
Consumption goods do not promote the production capacity of the firm because these are also known as finished products. कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स हो जाते हैं. इनको क्या है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करती बिकॉज दीज आर रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स. ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स क्या करती हैं, हेल्प अ फर्म इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज करने के लिए हेल्प करती हैं. क्लियर. नेक्स्ट, What are final goods and intermediate goods? Final goods क्या होती हैं and intermediate goods क्या होती हैं? Now, first one is final goods. Final goods are those goods that do not require further processing and are ready to use. Right? Final goods क्या होती हैं, जिनको की further processing की जरूरत नहीं होती और वो क्या होती हैं, ready to use होती हैं. These goods are also called as consumer goods. इनको क्या बोला जाता है, consumer goods भी बोला जाता है. And are manufactured for the purpose of direct use by the end consumer. जो end consumer होगा वो क्या करेगा, इनको purchase करेगा and consume कर लेगा. Right? In a nutshell, final goods are products that are manufactured by a company for consumption by the consumer in coming time. Right? फाइनल गुड्स कहते हैं वो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फॉर कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर इन द कमिंग टाइम. दीज गुड्स एम टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर. फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड और नॉर यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोडक्शन. राइट. जो फाइनल गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंज्यूमर क्या अपने लिए परचेज करता है. राइट. वो उसका क्या होता है, एंड यूजर होता है. So final goods are neither resold nor used for further transformation in production. ना ही उनको रीसोल्ड किया जा सकता है एंड ना ही उनको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, फाइनल गुड्स में कहते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है. गुड्स दैट आर परचेज बाय द लोकल हाउस होल्ड्स आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन. राइट. जो लोकल हाउस होल्ड्स के द्वारा जो गुड्स परचेज की जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, जो कि उनकी फाइनल कंजम्पशन के लिए होती हैं. फॉर एग्जांपल टेलीविजन, मिल्क, रेडी टू ईट फूड्स हो गए, मेडिसिन हो गए. राइट. दे इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ द गुड्स दैट आर बॉट बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज और द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल. राइट. इसमें वो वाली गुड्स भी आती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती हैं किसके लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस और फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, जिनको कि आगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज करना होता है. क्लियर. नाउ final goods can be diversified into the two broad categories. First one is on the basis of buying habits and second one is on the basis of durability. First one is on the basis of buying habits. There are four types of goods. First one is convenience goods. Convenience goods वो goods होती हैं are those goods that are available and regularly consumed by the buyers. For example, सबसे पहली एग्जाम्पल हो जाती है हमारी मिल्क की. राइट. मिल्क क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं डेली जो क्या परचेज करते हैं. राइट. अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि जितनी हमें जरूरत है उतनी. सो दीज आर नोन एज कन्वीनियंस गुड्स. ब्रेड, पल्सीज एटसेट्रा, जिनको कि हम लोग रेगुलरली कंज्यूम की जाती हैं बाय द बायर्स. नेक्स्ट, सेकंड वन इज स्पेशलिटी गुड्स. स्पेशलिटी गुड्स क्या होती हैं, स्पेशलिटी गुड्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड बाय द अपर क्लास ऑफ सोसाइटी. एज द नेम सजेस्ट स्पेशलिटी. राइट. कि कहते हैं जो अपर क्लास हमारी सोसाइटी, जो बहुत रिच लोग होते हैं उनके द्वारा कंज्यूम की जाती हैं. एज दे प्रोवाइड लग्जरी एंड आर एक्सपेंसिव. राइट. जो लग्जरियस प्रोवाइड की करती हैं गुड्स एंड जो क्या होती है बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. These goods are not a necessity. Instead, the purchase is made on the basis of the user's desires. Examples are antique cars, jewelry, कारपेट्स. राइट. जो बड़े बड़े घरों में हम देखते हैं कि कारपेट्स वगैरह बिछे होते हैं. सो ये क्या हो जाते हैं हमारे स्पेशलिटी गुड्स में इंक्लूड होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, third one is shopping goods. Now, what are shopping goods? These types of goods are purchased after thinking a lot about them on the customer's part. They are durable and more expensive in comparison to convenience goods. For example, refrigerator, televisions, laptops, etc. Right. कि जिनके
जिनको परचेज करने से पहले जो कस्टमर है वो क्या करता है, पूरी मार्केट रिसर्च करता है। फॉर एग्जांपल अब हमने मान लो लैपटॉप लेना है, फॉर एग्जांपल फोन, मोबाइल फोन ही परचेज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सारी ऑनलाइन साइट्स पे क्या करते हैं, पहले उसका प्राइस चेक करते हैं, राइट। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ जहाँ भी अवेलेबल होता है, जोन सी हमें ऑनलाइन साइट्स पता होती हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं कि जहां से हमें सस्ता मिलेगा वहां से हम परचेज करेंगे, राइट। जो जहां से हमें जो जो फैसिलिटीज चाहिए वो हमें मिल रही होंगी, तो हम वहां से क्या करेंगे, परचेज कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाती है हमारी शॉपिंग गुड्स, की जिनको की अटमोस्ट रिसर्च करके क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, राइट। ये क्या होती है, ड्यूरेबल भी होती है एंड मोर एक्सपेंसिव भी होती हैं एज कंपेयर टू कन्वीनियंस गुड्स, बिकॉज कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं, जो हमारे रेगुलरली यूजेस को पूरा करती हैं, जो इतनी महंगी नहीं होती, राइट। सो जो महंगी होती हैं और क्या होती हैं, बहुत थिंक आफ्टर थिंकिंग लॉट ऑफ आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, सो शॉपिंग गुड्स आर परचेज्ड, राइट। नेक्स्ट आ जाती है हमारी अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स क्या होती हैं, these types of goods are easily available in the market but are rarely purchased by the consumer, therefore the name unsought goods are given, right। ये वो गुड्स होती हैं जो कि easily available तो होती हैं बट कि रेगुलरली कहते कंज्यूमर्स परचेज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, स्नो जैकेट्स एक्सेट्रा। लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं बड़े बड़े होटल्स वगैरह में तो हमें मिल जाता है, बट हम घर पे होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो यूज नहीं करते। सो इनकी जो डिमांड है वो क्या है, मतलब कम ही होती है। सो दीज आर नोन एज अनसॉर्ट गुड्स। क्लियर। Next, on the basis of durability, there are three type of goods. First one is services. Services क्या होती हैं, intangible होती हैं, as they cannot be physically touched, but they provide satisfaction to the buyers. ये क्या होती है, वेरिएबल भी होती है एंड इंडिविजिबल भी होती है। इंडिविजिबल मीन्स कि हम इसको जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे क्या है, उससे अटैच्ड होती हैं, उनसे अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर है, जो डॉक्टर को ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो क्या है, किसी सेकंड पर्सन के थ्रू नहीं प्रोवाइड करवा सकता, राइट। जो सर्विसेज उसने देनी है तो वो वही सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। सो देयरफॉर सर्विसेज आर इनडिविजिबल इन नेचर, कि इनको क्या है, डिवाइड नहीं किया जा सकता। दीज आर ऑलवेज अटैच्ड बाय टू द सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल सलून सर्विसेज, ऑटोमोबाइल रिपेयर सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल विथ स्मॉल शेल्फ लाइफ एंड आर टू बी कंज्यूम्ड एज सून एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बेवरेजेस एक्सेट्रा, कि जिनको बहुत थोड़ी लाइफ होती है और बहुत जल्दी क्या है, कंज्यूम करना होता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर गुड्स विद अ longer shelf life than non-durable goods. For example cars, equipments etc, right, जिनकी की longer shelf life होती है। So these are known as durable goods. Clear? Next, now what are intermediate goods? Intermediate goods are goods used to produce a final good or finished good for the purpose of selling it to the consumer, right। कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको की एक फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बाद में कंज्यूमर्स को सेल की जाती है, राइट। लाइक कैपिटल गुड्स, बट इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में भी डिफरेंस है। इंटरमीडिएट गुड्स लाइक सॉल्ट कैन बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। सॉल्ट कहते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बट इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट एज इट इज कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर्स एंड कैन बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस अदर फूड प्रोडक्ट्स, राइट। कि जिसको तो कंज्यूमर्स डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं एज फाइनल गुड, राइट, बट can be used by the producers to produce other food products. Therefore, intermediate goods can be used as a final product as well as in production of other finished product. Clear? Some facts about intermediate goods. Intermediate goods remain within the production boundary, that is these are purchased by one production unit from other production unit, right। कहते जो intermediate goods होती हैं वो एक production boundary के बीच में ही रहती हैं हमेशा, मतलब एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट ने क्या किया, उसको परचेज किया।
However, every purchase of goods by one production unit from another is not an intermediate purpose purchase of goods. Right? कहते एक जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्शन यूनिट से जब दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में जो गुड जा रही है वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स ही हो. राइट? वो क्या कर सकता है, दूसरी प्रोडक्शन यूनिट उसको क्या कर सकती है, एज अ फाइनल प्रोडक्ट भी सेल कर सकती है. क्लियर? It means that if a good is purchased for investment purposes and not for the purpose of resale, then they are termed as final goods. Right? कि जिनको कि investment purposes के लिए सेल परचेज किया जा रहा है, not for the purpose of resale, उनको क्या consider करेंगे हम, final goods. For example, goods like machinery etc. are purchased by one production unit from another for the purpose of production. Right? Also, their value is not added to the value of final good. Therefore, these goods are not termed as intermediate goods but as final goods. Right? जैसे कि कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मशीनरी जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफर हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर फाइनल गुड यूनिट्स. राइट? और उसमें क्या है, जो मशीनरी है जो कि एक प्रोडक्शन से यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफर की जा रही है ताकि हम लोग दूसरे जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके. सो हम देखते हैं कि जो मशीनरी है उसमें कोई भी उसकी वैल्यू ऐड नहीं हो रही. राइट? जितनी वैल्यू एक प्रोडक्शन यूनिट में थी सेम एज वैल्यू दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में. सो उसको क्या है, हम इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे. क्लियर? व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री? अभी मैंने बोला था ना कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो हमेशा एक प्रोडक्शन बाउंड्री में रहती हैं. नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री? To understand the difference between intermediate goods and final goods, it is essential to know the concept of production boundary. It is a line around the productive sector within which, as long as the good remains, it is known as intermediate good. And when the good comes out of this boundary, it is known as final good. Right? कहते हैं प्रोडक्टिव सेक्टर में जितना टाइम वो उस बाउंड्री के बीच में रहेगी तो उतना टाइम वो क्या उस गुड को क्या कंसीडर किया जाएगा, इट इज कंसीडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड. बट एज लॉन्ग एज कि जब वो गुड उस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लेगी, सो दैट गुड विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल गुड. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, a farmer who produces wheat sells his wheat to a miller for ₹100. right? एक फार्मर है जिसने कनक अपनी क्या करी, एक मिलर को सेल करी कितने में, विद इन ₹100. राइट? सो ये क्या हो रहा है, फार्मर से मिलर को ट्रांसफर हो रही है. राइट? इन ₹100 व्हीट. सो ये क्या हो गया, वन प्रोडक्शन यूनिट एंड दिस इज अदर प्रोडक्शन यूनिट. Clear? The miller further uses the wheat to make flour, a secondary intermediate goods. अब मिलर ने क्या किया, उस व्हीट से क्या बनाया, फ्लावर बनाया. क्लियर? आटा बना लिया. उसकी क्या होगी, सेकेंडरी इंटरमीडिएट गुड होगी. क्लियर? नाउ द मिलर सेल्स अ फ्लावर टू अ बेकर फॉर 2000. अब मिलर ने क्या किया, किसको सेल किया, बेकर को. कितने में, 200 में. क्लियर? सो ये क्या होगी, दोबारा ट्रांसफर की जाएगी. ये क्या हो गया, ये सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड प्रोडक्शन यूनिट होगी. क्लियर? नाउ द फाइनल गुड विच इज सोल्ड डायरेक्टली टू द बायर इज द ब्रेड. द बेकर सेल्स ऑल इट फॉर 300. नाउ बेकर ने क्या किया, बेकर ने किसको सेल किया, बेकर ने सेल किया बायर को. बायर को क्या सेल किया, ब्रेड बना के. तो कितने में सेल की, ₹300. Right? So this is final good. This is final good. Clear? So this line denotes production boundary line. Right? फार्मर ने क्या करी, व्हीट प्रोड्यूस की और मिलर को बेच दी at ₹100. right? मिलर ने क्या किया, फ्लावर बनाया and sells it to the baker in ₹200. the baker produces bread worth ₹300 and sells it to the consumer. so this is the final good which is bread and which is directly sold to the consumers. Clear?
The above diagram shows three production units, that is farmer, miller and baker. The thick border across these units is the production boundary, which means that within this limit wheat and flour are the intermediate goods. However, as the bread is outside the production boundary, it becomes the final good. तो ये क्या बन जाती है हमारी final good, which is directly sold to the consumer. Clear? Next. As the demand for an intermediate goods depends upon the demand of the final good in the market, it has a derived demand, right? कि final good के लिए हमें intermediate good की जो है demand create होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी क्या है, एक derived demand भी होती है, right? For example, पेन्स की डिमांड को देखते हुए मार्केट में, फॉर एग्जांपल पेन्स की डिमांड क्या है, मार्केट में इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड उस केस में क्या हो सकता है हमारा, रिफिल्स हो सकते हैं, इंक हो सकती है, सो ये क्या हो जाते हैं हमारी इंटरमीडिएट गुड्स. क्लियर? Usually durable goods are considered final goods, but the durable goods purchased by the government for the military such as vehicles, aircraft, trucks, etc. are considered intermediate goods. Right? कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स को यूजली क्या किया कंसीडर किया जाता है, फाइनल गुड्स कंसीडर किया जाता है. बट जब ड्यूरेबल गुड्स को गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पसेस के लिए परचेज करती है तो उनको क्या कंसीडर किया जाता है, एज इंटरमीडिएट गुड्स. It is because these goods helps in producing defense services and are not for sale in the market. Because ये goods क्या करेंगी, help करेंगी defensive services में, but ना कि market में हम government sale करने के लिए use करेंगे. Clear? The value of an intermediate goods is merged with the value of final goods. For example, if production unit purchases cotton worth 500 and converts it into thread worth 500, then the value of final good includes the value of intermediate good cotton. Clear? कहते जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होती है वो किस में मर्ज हो जाती है, विद द फाइनल गुड. हाउ? कहते फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन यूनिट ने परचेज करी थी कॉटन वर्थ 500 रुपीज की एंड उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया वर्थ रुपीज 800. सो the value of the final good includes the value of the intermediate good. जो हमने फाइनल गुड की अपनी वैल्यू होगी उसमें क्या है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी कंसीडर की जाती है. क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स. क्लियर? नेक्स्ट. ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. कहते जो नेशनल इनकम की बात होगी तो ओनली फाइनल गुड्स को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स. राइट? अभी हमने देखा कि जो वैल्यू होगी इंटरमीडिएट गुड की वो उसकी वैल्यू किसमें कंसीडर की जाएगी, इन द विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड. सो देयरफॉर जो हम इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नेशनल इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे. If the value of intermediate goods is also added to determine the national income, then it will lead to double counting. Right? अगर हम क्या करेंगे, अपने इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में डिटरमाइन कर देंगे, नेशनल इनकम में एड ऑन कर देंगे, सो इससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी. इन द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, out of wheat, flour and bread, only the value of bread is included in the national income of an economy as it already includes the value of intermediate goods. Because जो wheat थी वो कितने की थी, 100 रुपीज की, बट जो ब्रेड जो बेकर ने सेल करी वो कितने की थी, 300 रुपीज की. राइट? सो इसमें क्या है, हमारी ब्रेड एंड जो फ्लावर बनाने की जो फ्लावर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, कंसीडर्ड थी. राइट? 100 plus 200 is equals to 300. Clear? Therefore, we can say that intermediate goods are not included in the national income of an economy. Clear? Next. Now, difference between final goods and intermediate goods.
Meaning, final goods are those goods that do not require further processing and are ready to use for consumption and investment. Right? Final goods कहते हैं वो goods होती हैं जिनको कि further processing और manufacturing की जरूरत नहीं होती, जो क्या होती हैं ready to use होती हैं. On the other hand, intermediate goods क्या होती हैं जिनको यूज किया जाता है to produce a final good or finished good, right? For the purpose of selling it to the consumer, जिनको कि बाद में consumers को sale किया जाएगा. Nature. Final goods are included in domestic income as well as national income of the economy, right? Final goods को क्या कहाँ include किया जाता है? Domestic income as well as national income. On the other hand, intermediate goods are neither included in domestic income nor national income of an economy. Production boundary. The final goods are the goods that have crossed the production boundary, right? After the production boundary, after crosses the production boundary, a good becomes final good. Therefore, final goods कहते हैं वो goods होती हैं जिन्होंने production boundary को cross कर लिया होता है. On the other hand, intermediate goods are the goods that are present within the production boundary, जो कि within the production boundary क्या होती हैं? Present होती हैं. Value addition. No value has to be added to the final goods because they are ready to be used and invested by their final users, right? कहते हैं फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एड ऑन नहीं की जाती बिकॉज ये क्या होती है? रेडी टू यूज होती हैं एंड इन्वेस्टेड बाय देयर फाइनल यूजर्स. ऑन द अदर हैंड, in the intermediate goods, some value has to be added to the intermediate goods because they are not ready to use. यहाँ पे क्या है? intermediate goods में some value क्या की जाती है? add on की जाती है. Example, butter purchased by a consumer for consumption, equipment purchased by an organization as an investment, right? कि जो consumer ने butter क्या किया? अपनी एक consumer ने कंज्यूम किया फॉर कंजम्पशन, राइट? कंज्यूमर ने परचेज किया फॉर कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज किया, सो दीज आर फाइनल गुड्स. ऑन द अदर हैंड, बटर यूज्ड बाय अ बेकर फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड, राइट? वही बटर जब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो उसके लिए वो क्या बन गया? फाइनल गुड. ऑन द अदर हैंड, जब वही बटर अगर किसी प्रोडक्शन यूनिट में, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहा है, फॉर एग्जांपल पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, तो वो क्या बन गई? दैट इज कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. क्लियर? नेक्स्ट. Now, examples of intermediate goods and final goods. Comprehensive examples of intermediate goods and final goods. Final goods are of two types: consumption goods and capital goods, and second is intermediate goods. Vehicle. If it is purchased by households, right? तो वो क्या होगी? Consumption goods, क्योंकि households ने purchase की है. On the other hand, if it is purchased by a firm for business purpose, business purpose के लिए कोई firm purchase कर रही है तो वो क्या होगी? उनके लिए capital goods, because these are used for capital formation or investment purposes. Clear? Intermediate goods, if it is purchased by a dealer for resale, अगर किसी डीलर ने रीसेल पर्पसेस के लिए यूज किया है तो वो क्या होगी? उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स. ऑन फ्लावर, जैसे कि आटा, इफ इट इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड ने यूज किया तो वो उसके लिए क्या है? कंजम्पशन गुड्स, बिकॉज उन्होंने खरीदा और अपना क्या है? यूज कर लिया. इफ इट इज लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर शॉपकीपर एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? अगर कहते वो क्या है? ट्रेडर या शॉपकीपर के पास वैसे ही का वैसा ही पड़ा है और उसने नहीं बेचा तो वो उसके लिए क्या होगी? कैपिटल गुड. क्लियर? If it is used by a baker for further use or by a trader for resale, right? कि अगर बेकर ने उसके लिए क्या है? उसको फ्लावर को यूज किया फॉर फर्दर यूज के लिए, लाइक केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो वो क्या होगी? उसके लिए इंटरमीडिएट. क्लियर? सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, इफ इट इज यूज बाय हाउसहोल्ड्स तो ये क्या होगी? कंजम्पशन गुड्स, अगर हाउसहोल्ड्स को मिल रही हैं. कैपिटल गुड्स नहीं होती इस केस में. इफ इट इज यूज्ड बाय अ कॉलेज, फर्म, स्कूल, तो ये क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? फॉर एग्जांपल, जो कॉलेजेस में क्या होती हैं, स्कूल्स में क्या होती है? उनकी इंटर्नशिप लगती है, उनकी प्रैक्टिसिंग लगती है, तो वो क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड्स. वूल, if it is purchased by household then it is considered as consumption goods. अगर कोई हाउसहोल्ड अपनी स्वेटर बनाने के लिए, विंटर पर्पसेस को कंप्लीट करने के लिए
वूल परचेज कर रहे हैं तो वो क्या हो गई उसके लिए कंजम्पशन गुड्स. If it is lying unsold with the trader at the end of the year, right? So this is considered as capital good. कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर ने क्या किया, पूरा साल अपने पास उस वूल को संभाल के रखा एंड उसको सेल नहीं किया. तो वो क्या किस पर्पस के लिए नहीं किया, कि वो उसको क्या करना चाहता है, अपनी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज करना चाहता है. सो देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज कैपिटल गुड. If it is purchased by a cloth manufacturing firm for making woolen clothes by a shopkeeper for resale, right? अगर कहते हैं किसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने उसको वूल को परचेज किया फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ्स और बाय अ शॉपकीपर फॉर रीसेल, देन इट इज कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. क्लियर? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. नेक्स्ट टॉपिक, What is net indirect tax? Net indirect taxes क्या होता है? Most important topic. Net indirect tax refers to the difference between indirect taxes and subsidies, right? Net indirect taxes क्या होते हैं? Difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes क्या होते हैं? Are the taxes imposed on the production and sale of goods and services by the government of a country, right? जो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है उन पे जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, वो क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर? फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. An indirect tax imposed on a good or services results in an increase in its price in the market, right? जो indirect tax कहते हैं किसी good और services पे impose किया जाता है, उसकी वजह से उसकी value क्या हो जाती है, price क्या हो जाता है, increase हो जाता है market में. For example, if the cost of production of a good is ₹1000 and the government levies 10% GST on it, then the good will be sold as a 1100 in the market, right? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? 1000 रुपीज की. गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर 10% क्या लगा दिया? जीएसटी इम्पोज कर दिया. तो उस जो गुड की प्राइस थी वो कितने की सेल होगी? एज 1100 रुपीज, राइट? उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज होगी? बाय 100 रुपीज. However, सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज वो होती हैं, सब्सिडीज क्या है? छूट, कि जो गवर्नमेंट क्या करती है? छूट प्रोवाइड करती है, रेमेडीज प्रोवाइड करती है. सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन टू द फर्म एंड हाउस होल्ड बाय द गवर्नमेंट विद द एम ऑफ द जनरल वेलफेयर. इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट? कहते वो इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है जो कि फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है फॉर एज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस. For example, LPG cylinder in India is sold at a rate less or subsidized rate, right? जो LPG cylinders हैं वो क्या है? अराउंड 1100 का समथिंग सिलेंडर जो है सेल किया जाता है, बट उसमें से क्या होता है? 460 समथिंग कुछ ऐसी अमाउंट क्या है हमारे अकाउंट में वापस आ जाती है. तो वो जो वापस आती है अमाउंट, रिटर्न बैक आती है हमारे अकाउंट में, सो दैट इज कंसीडर्ड एज सब्सिडीज दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कि जिसकी वजह से जो प्राइस है वो क्या है? कम हो जाता है. The government usually grants subsidies to promote exports or to encourage organization to set up industries in backward regions, right? ये subsidies क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? ताकि गवर्नमेंट क्या करती है? in order to promote export or to encourage organization to set up industries in backward regions. Backward regions में सेटअप करने, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हेल्प करती है, राइट? Subsidies are not in like indirect taxes. They reduce the market price of a good or service, right? Indirect taxes से क्या होता था? मार्केट प्राइस क्या हो जाता था? इंक्रीज हो जाता था. बट इन सब्सिडीज, जो सब्सिडीज के आने की वजह से जो मार्केट प्राइस है किसी गुड का वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. For example, if government grants a ₹20 subsidy on the above mentioned goods, right, on 1100 goods, then it will be sold as 1080 in the market, right? अगर 20 रुपीज की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है तो हमारी गुड में से हमारी जो टोटल मार्केट वैल्यू में से 20 रुपीज क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे. क्लियर?
सो देयरफॉर वी कैन सी दैट जो सब्सिडीज होती हैं उसकी वजह से हमारा जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन indirect taxes and subsidies. So what is net indirect tax? Net indirect tax is the difference between indirect taxes and subsidies. Clear? Next, right? Net indirect tax is equals to indirect taxes minus subsidies. This is a formula to calculate net indirect tax. Now what is factor cost versus market price? Factor cost क्या होती है? Factor cost is the amount paid to the factors of production for the factor services provided by them in the production process. Right? कहते फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट होती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे की जाती है फॉर द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. In the above given example, 1000 is the factor cost, right? If we are talking about the above given example, जो पहले मैंने एग्जांपल दी थी, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो 1000 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी हमारी, फैक्टर कॉस्ट. However, market price is क्या होता है, market price is the price at which the product is actually sold in the market to the consumers, right? मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्लूड होते हैं एंड जो सब्सिडीज क्या होती हैं, एक्सक्लूड होते हैं, राइट? सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. देयरफॉर देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. क्लियर? So this is the formula to calculate market price. Clear? Next, this is market price. अगर हम मार्केट प्राइस में क्या कर देते हैं, हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, सो दैट विल बिकम आवर फैक्टर कॉस्ट, राइट? फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, बट अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर देते हैं, दैट विल बिकम आवर मार्केट प्राइस. क्लियर? मार्केट प्राइस में क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट होते हैं. नेट इनडायरेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विस. The market price of a good or service includes net indirect taxes, right? Market price में क्या होता है, net indirect taxes include होते हैं. However, the factor cost of a good excludes net indirect taxes. Another important fact about indirect taxes and subsidies is that they only arise in the 3-sector economy and 4-sector economy and not in the 2-sector economy, right? जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज होते हैं, राइट, वो कब अराइज होते हैं, ओनली इन 3-sector इकोनॉमी एंड 4-sector इकोनॉमी एंड नॉट इन 2-sector इकोनॉमीज. दिस विल बी डिस्कस्ड. क्लियर? नेक्स्ट, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन. कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं, वेयर सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर ₹200 एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 0. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, indirect taxes minus subsidies. So indirect taxes are 0 and subsidies are minus 200. So net indirect taxes will become negative. Clear? Next, calculate net indirect tax when subsidies provided by the government are 0 and indirect taxes are ₹500. Subsidies 0 है हमारी, net indirect taxes 500. So our indirect taxes are 500. So our total net indirect taxes is equals to ₹500. Clear? Next, calculate net indirect tax when subsidies provided by the government are 250, right? Subsidies कितनी provide कर रहे हैं, 250,
एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 170, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं हमारे 170, यहाँ पे 170 माइनस 250 इज इक्वल्स टू दी -80। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। 170 minus 250 is equals to minus 80 rupees. Clear? Next. Now, वो थी हमारी net indirect taxes. Now, what is net factor income from abroad? नेट फैक्टर इनकम जो कि हमें कहां से मिल रही है, फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड बाय अ कंट्री टू द अब्रॉड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। कि जो फैक्टर इनकम हमारी कंट्री को रिसीव हो रही है फ्रॉम आउटसाइड कंट्री एंड जो फैक्टर इनकम हम लोग पे कर रहे हैं टू द आउटसाइड कंट्री, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स is considered as net factor income from abroad. Clear? Factor income from abroad is the income received by a country's normal resident from the rest of the world for the factor services provided by them, right? For example, जो फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बाय द फॉरेन कंट्री और अब्रॉड, राइट। सो उससे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? द इनकम इज अर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरीज, डिविडेंड्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। हाउएवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम जो कि हम अब्रॉड को पे कर रहे हैं, राइट। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज द इनकम पेड बाय अ country's normal resident to the normal residents of other country, right। कि जो पेमेंट हम हमारी कंट्री के लोग कहाँ पे कर रहे हैं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किसको पे कर रही है, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट को, उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? फॉर द फैक्टर सर्विसेज गिवन बाय देम विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट। जो कि फैक्टर सर्विसेज उनको दी गई थी, उन्होंने हमें दी थी। क्लियर? नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू द फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, राइट। फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर पेमेंट। क्लियर? सिग्निफिकेंस ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड is essential for differentiating between the domestic income and national income of an economy, right। net factor income from abroad कहते क्यों जरूरी है, differentiating between domestic income and national income of an economy। At first the domestic income is determined, right। सबसे पहले हमने domestic income अपनी निकाली, कैलकुलेट कर ली, उसमें अगर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, जो फैक्टर इनकम हमें रिसीव हो रही है उसको ऐड ऑन कर देंगे और जो पेमेंट्स हमने करी हैं उनको डिडक्ट कर देंगे, देन वी विल डिटरमाइन नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम में क्या कंसीडर होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? The difference between factor income from abroad and factor income to abroad is net factor income from abroad. Therefore, another formula of national income is domestic income plus net factor income from abroad. Clear? Next, net factor income from abroad कहते can be zero, positive और negative। हमारी इकोनॉमी के लिए जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और कैन बी नेगेटिव।
it will be 0 when factor income earned from abroad and paid to abroad is equal, where receipts and payments are क्या हो जाएंगी equal. Net factor income from abroad will be positive when factor income earned from abroad is more than the payments made to the abroad, right? Where receipts are more than payments. However, it will be negative when factor income earned from abroad is less than the factor income paid to abroad, right? When payments are greater than receipts. Clear? Components of net factor income from abroad. Now, net factor income from abroad में क्या कुछ हम लोग add on करते हैं. Clear? उस पे क्या कौन कौन से components होते हैं. First one is net compensation of employees. हमारे जो employees हैं उनकी net compensation. It is the difference between income received from work by the resident workers living or employed abroad for less than 1 year, right? कहते क्या होता है, इनकम जो कि रिसीव करी है हमारे रेजिडेंट वर्कर्स ने बाय वर्किंग अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर, राइट? हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, इंडियन रेजिडेंट्स आउटसाइड अब्रॉड काम कर रहे हैं फॉर लेस देन अ ईयर, and similar payments made by an economy to the non-resident working within the domestic territory of a country for less than 1 year, right? कि जो payments हम कर रहे हैं किनको कर रहे हैं, foreigners को कर रहे हैं जो कि हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं for less than 1 year, right? So it जो दोनों का difference होगा that is known as net compensation of employees. Clear? Next one is net income from property and entrepreneurship. It is the difference between income received in the form of rent, dividend, interest, right? कि जो हमें income receive हुई है in the form of rent, dividend और interest from property and entrepreneurship by the residents of the country, right? हमारी country के residents को, and similar payments made to the non-residents of that country, जो कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, राइट? सो डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट्स मेड, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. क्लियर? नेक्स्ट वन इज नेट रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? Our retained earnings are that part of the profit which is kept aside as a reserve for future after payment of corporate tax and dividends, right? After payment of corporate tax and dividends, some money is saved for kept as a reserve for the future payments. Net retained earnings is the difference between the retained earnings of the resident companies which are located abroad and the retained earnings of the non-resident companies which are located within the domestic territory of the country, right? हमारी रेजिडेंट कंपनीज जो कि हमने अब्रॉड में सेटअप करी हैं उनसे जो हमारी अर्निंग्स हो रही हैं, एंड वो रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि नॉन रेजिडेंट कंपनीज यानी हमारी टेरिटरी में फॉरेनर कंपनीज फॉरेन कंट्रीज ने हमारी इंडिया में सेटअप करी है उनको जो हमने पेमेंट्स करी हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेट रिटेन्ड अर्निंग्स. क्लियर? सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैज मेन 3 components, that is net compensation of employees plus net income from property and entrepreneurship plus net retained earnings. Clear? Net factor income from abroad includes all 3 components, right? Next, practice question. First one is calculate net factor income from abroad if factor income from abroad is 1000 and factor income to abroad is 300, right? हमारी receipts कितनी है 1000 rupees की and payments कितनी है 300 rupees की. So our net factor income from abroad is 1000 minus 300 is equals to the 700 rupees. Clear? Next, net factor income from abroad है हमारी 670
एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमें जो रिसीट्स हैं वो कितनी है हमारी 670 रुपीज़ की, एंड जो हमने पेमेंट्स करी हैं वो कितनी है, इज अबाउट 1500. सो आवर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 1500 minus 670 is equals to the minus 830, right? Or it can be written as 670 minus 1500 is equals to minus 830 rupees. Clear? Next, calculate net factor income from abroad. If factor income from abroad is rupees 1000 and factor income to abroad is 1000, right? So in this case, our receipts and payments are equal. Therefore, our net factor income from abroad is 0. Clear? Now, calculate net factor income from abroad if factor income from abroad is 700. Right? So in this case, हमारी जो receipts हैं वो 700 है, but हमने कोई payments नहीं करी. So in this case, net factor income from abroad is also equal to the factor income earned from abroad. Clear? Next, calculate net factor income from abroad if factor income to abroad is rupees 300, right? So in this case, जहाँ पे हमने हमारी जो receipts हैं वो क्या हैं, 0, and only payments can be done, so our net factor income from abroad becomes negative. So हमारी net factor income from abroad क्या हो जाएगी, becomes negative. Clear? So this is it for today's video. I hope you liked my videos. Please subscribe my channel. Thank you.